स्टार्ट करें सर? Yes, yes. Yes, you can start. Namaskar everyone. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Still people are joining. Okay. So myself, Vaidya Zai Kiran Kini, Director Research and Postgraduate Education Coordinator, YMT Ayurvedic Medical College, welcomes all of you on the behalf of Academy of Rop Nidan. This is our 53rd lecture. And today we are blessed with our eminent speaker, Vaidya Satyavrat Nanal, and sir is going to deliver on practical methods of Ayurvedic diagnosis for Naidanic research. So first of all, sir, hello, Nanal sir. Namaskar sir. First, Namaskar. I would like to give a brief introduction of Nanal sir. Vaidya Satyavrat Nanal, he is MD Dravya Guna from Bharati Vidyapit. Sir practices as consultant Ayurvedic physician in Mumbai at Mahim, Chembur and at Alibag in Raigad district of Maharashtra. He is ex-lecturer of YMT Ayurvedic Medical College, Kharghar, Navi Mumbai. Sir practices mainly by using single herb drugs and herbomineral combinations from Ayurveda. Sir had done a lot of elaborative work on concept of Ayurveda and non-veg food with reference to Charaka Sanhita in his post-graduation. He is the proprietor of Madhavi Prakashan. He is current working as an editorial in Nanal Madhujivan and Ayurvedic Monthly, which is getting published in Mumbai. He is the editor of Ayurved Vartahar. He is an advisory editor on Arogyam, a multilingual monthly that is also published in Mumbai. He is a specialist in using various herbs as a single drug therapy in various diseases. Sir is specialist in using non-vegetarian food in dietary management of various diseases. Sir is a writer for various Ayurvedic journals, to name a few: Nanal Madhujivan, Arogyam, Agnihotra Chikitsa, and many more. Sir is a writer and translator for book on Ayurvedic dietary management in various diseases. Sir always gives various interviews on Indian television, radio, online newspapers. Sir is the speaker of 2 ongoing series of Samna newspapers Facebook page, that is Healthy Wealthy series, Ahar Arogya and Ayurveda also. So there is many more to say, but without wasting time, I welcome Vaidya Satyavrat Nanal ji on behalf of ARN and would like to request him to start with his lecture. Sir, please, over to you. Hello, sir, am I audible to you? Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute yourself. Yes, you are muted. Unmute yourself. Hello. Yes, sir. Sir, yes, now you are audible. Okay. Now, first of all, welcome all who want to listen to what I am going to say. And secondly, thank you very much for inviting me to talk about some points which I would like to share with all. Now, this talk will be in English and Hindi as well, a mixed language, which is most comfortable with most of the people nowadays. So I'll stick to that way. The topic which has been selected will be emphasizing more on the diagnostic processes mentioned in Ayurvedic Samhitas, which are practically possible to follow even in today's era. And that happens only and only if we try to understand the concept of diagnosis given by Ayurveda. Now, why this is important? Currently, as the history of last 40 or 70 years after independence, the Ayurvedic fraternity is losing its essence of the specialities of Ayurveda
one of them is process of diagnosing a case. आयुर्वेदीय निदान पद्धति जिनका संहिताओं में दिया गया जो वर्णन है उसका व्यवहार में उपयोग करना धीरे धीरे वैद्यों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये इतिहास अभी का नहीं है, ये इतिहास गए 50 से 70 साल का है ही। ये छोड़ने की जरूरत नहीं है, रादर इसी को फॉलो करके आयुर्वेद का उपग्रहण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मेरे मत जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जिनको आगे इसके ऊपर सोचना है वो जरूर इसके ऊपर सोचें। सर्वप्रथम इसी में मुद्दा आता है कि आयुर्वेदिक रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है। आज तक मेरे ध्यान में कहीं भी किसी भी निदान के रिसर्चर्स ने आयुर्वेद के निदान पद्धति का खुद का रिसर्च का कोई भी प्रोसेस या रिसर्च की खुद की पद्धति उसका निश्चितीकरण नहीं किया है। और ये क्यों नहीं किया है इसका जवाब आज तक किसी से भी मुझे तो नहीं मिला। तो फिर जो रिसर्च चल रहा है वो कैसे चल रहा है? तो वो रिसर्च उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से आधुनिक शास्त्रों ने अपने रिसर्च को, उनके रिसर्च को करने का सोचा है। उन्हीं पद्धतियों को, द रिसर्च मेथोडोलॉजीज ऑफ मॉडर्न साइंसेस, उन्हीं को फॉलो करके आज आयुर्वेदीय रिसर्चेस को आगे लेके जाने की प्रथा सी हो गई। जो आयुर्वेद के लिए घातक है ये मेरा खुद का मानना है। उन प्रोसेसेस में कहीं खामी है कि नहीं है इसके ऊपर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक वैद्य के स्वरूप आयुर्वेद की खुद की रिसर्चेस की जो पद्धतियां हैं उनके हिसाब से निदानों को कैसे आगे लिया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर सोचना ये मेरा काम है। उन पद्धतियों को कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है और उन्हीं स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस से आगे निदान की, आयुर्वेदीय निदान पद्धतियों की रिसर्चेस को आगे लेके जाना यह व्यवहार में भी उचित होगा, ये मेरा स्पष्ट मत है। ये कैसे, इसके बारे में ये आगे का लेक्चर होगा। कुछ उदाहरण देके इसको आगे लेके जाऊंगा क्योंकि वो भी एक आयुर्वेद की ही पद्धति है। हर चीज को, हर एक मुद्दे को स्पून फीडिंग के तौर पे आयुर्वेद नहीं सिखाता, वो उसके उदाहरण देता है और उस दिए हुए उदाहरण के बलबूते पर बाकी चीजों को वैद्यों ने, शास्त्र के पंडितों ने, रिसर्चर्स ने आगे उसी प्रकार लेके जाने का अनुरोध आयुर्वेद का होता है। एक बुक मैंने पढ़ी थी बीच में जिसका नाम था आवर आइसबर्ग इज मेल्टिंग, जिसमें बिजनेस और उसके बारे में कुछ तथ्यों को रखा गया था। जिसको इंटरेस्ट होगा उन्होंने वो बुक जरूर पढ़े। लेकिन उसमें लेखक ने शुरुआत में एक कथा लिखी है और उस कथा के अनुसार आगे जाके बिजनेस के बारे में कैसे क्या सोचना चाहिए हर किसी ने ये बोला है। उसी तरीके से उसमें जो दिया है कि एक आइसबर्ग है, उसके ऊपर एक पेंगुइन्स की कॉलोनी है और उस कॉलोनी में सब लोग रूटीन से जिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति है जिसे ये आइसबर्ग नीचे से मेल्ट होकर खोखला हो रहा है, इसके बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है बिकॉज वो ऑब्जर्वेंट होता है। और ऐसे करके वो कथा कही गई है। इसमें से वो जो ऑब्जर्वेंट होने की बात है वही बात आयुर्वेद भी बहुत ज्यादा एम्फसिस करके वैद्यों के सामने संहिताओं के माध्यम से रखने का प्रयास हमेशा से करता आया है। इस आज के लेक्चर में मुझे बताया गया था कि द्वितीय और तृतीय वर्ष के
विद्यार्थियों का ज्यादा मात्रा में उपस्थिति होने की संभावना होगी। तो उस तरीके से उन द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खास करके इस विषय का कैसे फायदा हो सकता है, इसका ध्यान रखते हुए आज का विषय चर्चा प्रयोजन होगा। सबसे पहले आयुर्वेदीय निदान ऐसे जब हम कहते हैं तो सबसे पहली बात, मुंबई से पूना जाने के लिए मेरे पास कई साधन हैं। मैं रास्ते से जा सकता हूं, मैं फ्लाइट लेकर जा सकता हूं, मैं ट्रेन से जा सकता हूं। मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन से तरीके से मुंबई से पूना जाना है। तीनों रास्तों में से कोई रास्ता गलत है और कोई सही है ऐसे नहीं हो सकता। आज की मेरी जो परिस्थिति के हिसाब से मुझे कितने समय में मुंबई से पूना पहुंचना है, उसके लिए कितना पैसा खर्च करना है, उसके लिए कितना समय खर्च करना है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, गाड़ी से जाऊं या फ्लाइट से जाऊं। उसी तरीके से आयुर्वेद के निदान की पद्धति को, आयुर्वेद की रिसर्च की मेथोडोलॉजी के हिसाब से देखना, आयुर्वेद की निदान पद्धति को आधुनिक शास्त्रों की रिसर्च की मेथोडोलॉजी से देखना, ये दो अलग अलग तरीके हैं। कौन सा सही कौन सा गलत, ये जब मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य के हिसाब से सोचता हूं तो मेरे सामने सर्वप्रथम आयुर्वेद के निदान पद्धति को आयुर्वेद की रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से सर्वप्रथम देखना, इसे प्रायोरिटी मान के काम करने की जरूरत है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें आयुर्वेद की रिसर्च मेथोडोलॉजी को और आयुर्वेद की निदान पद्धति को बेसिक से समझना जरूरी होगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम एनीमिया और पांडु को एक माने, वात रक्त और गाउट को एक माने। ये ऐसे ही मानते मानते अगर हम विषयों को सीखेंगे तो इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा प्रामाणिक मत है। पहले वात रक्त क्या है इसे समझो आयुर्वेद के तरीके से, फिर गाउट क्या है उसे समझो आधुनिक तरीके से, और उसके बाद उनकी जो कंपैरिजन आपको करनी है वो बाद में करने के लिए बैठो। पहले ही दिन अगर आप गाउट में यूरिक एसिड देखते हैं इसलिए वात रक्त में भी यूरिक एसिड देखना है, ये समझ के चलोगे तो वात रक्त के निदान के लिए आपके भी मन में सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड देखना ये पैथोलॉजिकल पैरामीटर पक्का हो जाता है और आयुर्वेद की वात रक्त की निदान पद्धति को आप कायम के स्वरूप में पीछे छोड़ देते। ये निदान पद्धति जो है, जो आयुर्वेद ने दी है, उसको पहले समझना जरूरी है, उसकी पद्धति को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कुछ दो घटनाएं बोलूंगा कि लगभग 30 साल पहले दिल्ली में एक मीटिंग के लिए मेरे पिताजी जब गए थे तो वहां पे भारत भर के दिग्गज विद्वान आकर बैठे थे, जहां पे आधुनिक और आयुर्वेद के सभी तज्ञ बैठे हुए थे। एक रिसर्चर ने कोई सवाल किया कि पोलियो नामक चीज है जिसके आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति क्या हो सकती है। तो एक तज्ञ विद्वान जहां बैठे थे आयुर्वेद के, उन्होंने बोला कि हम तो रोज ओपीडी में 50-100 पोलियो के पेशेंट देख लेते हैं और पोलियो के पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। तो रिसर्चर ने, जो आयुर्वेद का भी नहीं था, आधुनिक मेडिसिन का भी नहीं था, जो सिर्फ वैज्ञानिक था, उन्होंने पूछा कि अच्छी बात है लेकिन हमें ये जानना है कि आप पोलियो का आयुर्वेदीय निदान क्या करते हो। तो हमारे निष्णात वैद्य ने उत्तर दिया कि पोलियो का निदान हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो आधुनिक अस्पताल में जाकर पोलियो का निदान करते हैं और वो फाइल लेके हमारे पास आते हैं और हम सिर्फ चिकित्सा देते हैं। तो फिर अगला सवाल उन्हें पूछा गया कि ओके, आप जब चिकित्सा करते हो तो चिकित्सा करने के बाद रुग्ण ठीक हो गया, ये आप कैसे डिसाइड करते हो।
तो सामने से फिर से आयुर्वेदिक तज्ञ ने उत्तर दिया कि हम फिर से निदान के बाद, चिकित्सा करने के बाद जब रुग्ण ठीक हो जाता है तो उन्हें फिर से उसी अस्पताल में भेजते हैं और वो अस्पताल वाले वहां पर पोलियो ठीक हुआ है ऐसे निदान करके फिर से दे देते हैं। तो इसमें एक बात, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे सामने एक बात आई कि आयुर्वेद में पोलियो का निदान है कि नहीं है। इसके भी ऊपर जाकर दूसरा सवाल आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि आयुर्वेद में निदान की कोई पद्धति है कि नहीं, कि अगर संहिता में कहा गया कोई रोग हो तो उसके लिए भी आप आधुनिक पैरामीटर्स यूज करोगे, और आयुर्वेद में कहे गए नहीं है ऐसे नूतन या नवीन रोग, न्यू डिसीजेस, ये भी अगर सामने आए तो उनके भी पैरामीटर्स आप आधुनिक ही अगर इस्तेमाल करने वाले हो तो फिर आयुर्वेद की निदान पद्धति का उपयोग कहीं बचा है कि नहीं। इस तरीके से काम अगर होते रहा तो आगे भी चल के इसी का घोर स्वरूप देखने मिलेगा, जिसका उदाहरण मैंने वात रक्त के स्वरूप में दिया। उसी तरीके से आमवात में आरए टेस्ट हो गई मतलब आमवात हो गया, ये निदान करना आयुर्वेद की निदान पद्धति निश्चित तौर पर नहीं है, और आयुर्वेद की निश्चित तौर पर अलग से निदान की पद्धति दी गई है, उसे देखना जरूरी होगा। कुछ चीजें इन निदान की पद्धतियों के बारे में जब हमें जानना है, उसके बारे में मेरा जो मत है वो अभी रखूंगा सामने, जिसमें एक कोई भी रोग हो तो उसके दोष के अनुसार प्रकार इतना संहिताओं में कहा गया है। जहां वातज हो, जैसे ग्रहणी हो गई तो वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी, ये एकेरी दोष की विकृतियों के प्रकार, फिर द्वंद्वज 3 प्रकार और एक सन्निपातज प्रकार। इसके बाद संहिताओं ने कहीं ना कहीं विशेष प्रकार से कुछ अवस्थाओं का, कुछ रोगों के वर्णन किया है, जैसे अतिसार में भयातिसार, शोकातिसार। इसके आगे चल के उस रोग की संप्राप्ति को हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त स्वरूप तक, मतलब षट क्रिया काल में संचय प्रसर से लेकर प्रकोप से आगे व्यक्ति और भेद तक जाने के लिए जो रास्ता रोग में उस शरीर को दिया जाता है, उस रास्ते पर चलते चलते कितनी सारी अवस्थाओं में से ये शरीर गुजरते जाता है, इसका ज्ञान वैद्य को होना बहुत जरूरी है। अब इन अवस्थाओं का वर्णन कहाँ पे संहिताओं में दिया गया है, ऐसा सवाल आता है। तो उसके लिए मैं आपका ध्यान संहिता में, चरक संहिता में दिए गए वात के कर्मों के ऊपर, कर्म के श्लोक के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा। जो श्लोक सबको मालूम है, पता है, एग्जाम्स के लिए बाय हार्ट भी किया जाता है, वाइवा में बोलकर अच्छे खासे मार्क भी लिए जाते हैं। जो श्लोक है स्रंस व्यास व्यध स्वाप साद रुक्तोद भेदनम संगांग भंग संकोचम इत्यादि, ये श्लोक वात के कर्म बताता है। मतलब क्या, इतना तो सबको पता है कि ये वात के कर्म बता दिए, अब इन कर्मों का आगे करना क्या है। तो ये आयुर्वेद की निदान पद्धति है, इसका अत्यंत उत्तम उदाहरण है। मतलब कैसे, तो स्रंस एक कर्म है, व्यास एक कर्म है, इस तरीके से वात के अनेक कर्मों को दिया गया है। अब इन कर्मों को अगर मैं एक अवयव, कोई भी एक ऑर्गन, इफ आई टेक से सपोज फॉर एग्जांपल हृदय, तो हृदय की कितनी सारी रोग की अवस्थाएं या अलग अलग हृदरोग में ही आने वाली अलग अलग अवस्थाओं की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जहां पे वातज कर्म होगा वहां पे हृदय व्यास, हृदय स्रंस, हृदय व्यथ, हृदय स्वाप, हृदय साध, हृदय रुख, हृदय वेदना, हृदय तोध, इतनी सारी अवस्थाओं को वात के कर्म के अनुसार हम देख सकते हैं। और हृदरोग में कौन से रुग्ण को इनमें से कौन से
वात के कर्म के हिसाब से देखा जा सकता है, ये विषय सामने आता है और ये आयुर्वेद की निदान की विशेषता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्हीं कर्मों में से हृदय व्यास, ऐसे अगर हम कहें तो आज आप कार्डियोमेगली जैसी चीजों को मॉडर्न के हिसाब से पढ़ते हो, वो आपको अपील होता है, एक्सरे में बड़ा हुआ हृदय, हृदय का आकार ये आपको दिखता है, लेकिन इसको आयुर्वेद में क्या कहेंगे, ऐसे अगर प्रश्न आए तो बहुत सारे लोगों का इन वात के कर्मों पर ध्यान नहीं जाता, जहां पे हृदय व्यास ऐसे ऑलरेडी संहिताओं ने कह के रखा है। इस तरीके से जब हम हृदय के व्यास को देखेंगे तो हृदय का व्यास जब बढ़ा हुआ है, वो हृदय का व्यास कौन सी अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है, ये विषय सामने आता है। जैसे आम वात के उपद्रव और उदर्क के स्वरूप में अगर हम देखें तो संहिता कहती है कि आमवात के आगे उपद्रवों में हृदरोग आता है, जहां पर कुछ रुग्णों में हृदय व्यास ये अवस्था दिखाई देती है। ऐसे ही बाकी भी बहुत सारे रोग हैं जिनमें जब उन रोगों का परिणाम हृदय पर होना शुरू हो जाता है तो हृदय की कुछ अवस्थाएं जो वातज कर्म की है वो दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये हो गया आयुर्वेद के हिसाब से किसी रोग में किसी एक विशिष्ट अवयव के ऊपर उस रोग का परिणाम होने के बाद दिखने वाली अवस्थाओं का निदान करने की पद्धति जो आयुर्वेद की संहिताओं में दी गई है। और मेरे हिसाब से इतनी सरलता से कहीं भी किसी भी शास्त्र में आयुर्वेद छोड़कर इस प्रकार के वर्णन मिलना बहुत ही रेयर कहूंगा। आयुर्वेद के श्लोकों में कंसाइज तौर पे सब कुछ दिया गया है, उसको खोलना ये जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे कमल का फूल या हिबिस्कस फ्लावर अगर हम देखें तो झाड़ के ऊपर से खिला हुआ फूल तोड़कर अगर आप लेके आते हो तो वो एक दिन में खराब हो जाता है, लेकिन उसी झाड़ के ऊपर से बंद फूल की कली को तोड़कर जब आप घर पर लेके आते हो, उसे पानी के एक ग्लास में डुबो के रख देते हो, तो वही फूल की कली 2-3 दिन के बाद खुलती है और वही 2-3 दिन तक आगे अच्छी खासी बनी भी रहती है। इस तरीके से अगर संहिताओं में हर एक चीज को इलैबोरेटिव देकर स्पून फीडिंग का काम अगर किया तो वैद्यों को स्पून फीडिंग की ही आदत लगेगी, जो आदत गलत है, क्योंकि खुद की बुद्धि को वैद्य को चलाने की कहीं ना कहीं चालना मिलना जरूरी है। ये आयुर्वेद के सिद्धांतों के पीछे की धारणा है और उसी धारणा के अनुसार इन श्लोकों की रचना की गई है। और इन्हीं वात के कर्मों के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो एक हृदय के जितने भी वात कर्म हैं उन कर्मों को जोड़कर हृदय की एक अवस्था को हम अभ्यस्त कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हृदय की कितनी अवस्थाएं होती है ये भी हमारे सामने आता है। ये आयुर्वेद की निदान पद्धति है और आयुर्वेद की रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसी का अंतर्भाव होना और इसी पर एम्फसाइज होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। अब ये मिलने के बाद इससे आगे क्या फायदा होगा? तो सबसे पहली बात, हम जब निदान करते हैं उन निदानों पे संप्राप्ति और उस संप्राप्ति के विघटन में इन अवस्थाओं का वर्णन ये षट क्रिया कालों में देखने को हमें मिलता है। जैसे ये सारी अवस्थाएं षट क्रिया काल में देखने को मिलेंगी। इनको अगर आप 50 हृदरोगी रुग्णों को देखकर इस तरीके से वर्गीकरण में डालोगे तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार करने में आसानी होगी। मतलब एक रोग, उसका निदान और उस निदान को करते समय उस रोग के शुरू होने से अंत तक
कितनी रोग की उस अवस्थाओं में से वो रोग गुजर सकता है, और वो गुजरते समय while passing the entire संप्राप्ति, the course of संप्राप्ति, कितनी रोग की अलग अलग अवस्थाएं प्रसर प्रकोप के भेदों में आकर जाती है, इनका निदान होना अपने सामने एक तालिका रूप में, एक चार्ट के फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। और ये निदान की रिसर्च की पद्धति है, आयुर्वेद ने दी। इसको कहीं भी आधुनिक तरीके से अगर आप जोड़ने जाओगे तो जोड़ सकते हो कुछ तरीकों में। सही मायने में उनको जोड़ने के लिए सर्वप्रथम इन तरीकों से इन अवस्थाओं का वर्णन सबसे पहले निकालकर लोगों के सामने रखना, इन पद्धतियों का स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये सबसे बहुत जरूरी बात है जिसमें आयुर्वेदीय निदान पद्धति को सोचा जाता है। अब इसके आगे भी जब एक एक अवस्था के रिसर्च के दायरे में रहकर एक एक अवस्था का अध्ययन जब करेंगे तो उसमें संचय, प्रकोप, प्रसर ये सब हम पढ़ते हैं। चिकित्सा में भी कितने वैद्यों ने आज तक निदान करते समय या रिसर्च करते समय भी, जो वैद्य रिसर्चर्स है उन्होंने भी कितने रुग्णों में ये संचय अवस्था है, ये प्रकोप अवस्था है, ये प्रसर अवस्था है, ऐसे निदान करने की कोशिश की है। ऐसे पूछने तक आज तक मुझे कोई हाँ में जवाब तो नहीं मिला है, क्योंकि हमने षटक्रियाकाल पढ़ा तो है, लेकिन उसको देखना कहाँ है और कैसे देखना है इसके बारे में कभी सोचा नहीं, या किसी ने सोचने के लिए प्रवृत्त नहीं किया। ये षटक्रियाकाल देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी तक जो मैंने वर्णन किए हुए अलग अलग रोग की अवस्थाएं हैं या रोग की अवस्थाओं में आने वाले शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर होने वाले परिणामों का वर्णन बताया, उसके तौर पर जब हम देखेंगे तो ये अवस्थाएं हमें लीन दोष संप्राप्ति से लेकर दोष प्रकोप संप्राप्ति तक बीच बीच में आवरण की अनेक अवस्थाओं का वर्णन देखने के लिए भी प्रवृत्त करती है। क्योंकि आवरण की अलग अलग अवस्थाएं, ये संचय, प्रकोप, प्रसर, इन अवस्थाओं में से वो रोग जाते समय ही अवस्थिक रूप में रुग्ण लेकर आते और उनका निदान करके उनकी चिकित्सा जब हम करेंगे तब पूर्व रूप में होने वाला आमवात या पूर्व रूप में होने वाला रुद्रोग व्यक्त स्वरूप में या व्यक्ति और भेद स्वरूप तक नहीं पहुंचता, और उसी के कारण निदान की इस पद्धति की श्रेष्ठतम है, ये मेरा मानना है। ये थोड़ा सा पहली बार सुनने के बाद विद्यार्थियों को बोरिंग लग सकता है या फिर इम्पॉसिबल लग सकता है, बट स्ट्रांगली इफ आई बिलीव इन समथिंग then I can definitely follow that path। ये मेरा खुद का मानना है, आज का अनुभव भी वही कहता है, और आज तक जो संहिताओं को पढ़कर काम करने की कोशिश की है, निदान के तरीकों को जानने की कोशिश की है, उसमें इन्हीं तरीकों से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है निदान करके, और प्रिसाइज निदान के बाद प्रिसाइज चिकित्सा का भी फल बहुत अच्छा मिलता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जब हम कहते हैं तो उन स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में इन्हीं रोग अवस्थाओं को जब हम एक लिस्ट के तौर पे बनाते हैं तो उनके सामने अगर किसी को करना ही है तो आधुनिक पद्धति से हमें मिली हुई इतनी सारी अवस्थाओं में से, मतलब हृदय स्रंस, हृदय व्यास, हृदय तोद, हृदय की वेदनाओं के अलग अलग प्रकार, हृदस्वाप, ये जो अवस्थाएं हैं इनको आधुनिक तौर के निदान पद्धतियों में कौन से रोगों में कहाँ इनको देखा जा सकता है, ये भी एक एडवांस तरीके का रिसर्च अगर किसी को करना है तो वो कर सकते हैं। ना किसी भी चीज के लिए रिसर्च में नहीं की जाती, चिकित्सा पद्धतियों में वो हाँ या ना हो सकता है। पर इस तरीके से काम करने के बाद आज जो वैद्य समुदाय में एक न्यूनगंड है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में
आधुनिक निदान के पद्धतियों में इतने सारे रोगों का वर्णन दिया है। भले उनके पास उन रोगों का वर्णन करने के बाद उनकी चिकित्सा नहीं है, इतना ही कहने को भी हो, तो भी उनके रोगों के निदान की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकलती है, उसके सामने आयुर्वेदीय वैद्य समुदाय के सामने एक न्यूनगंड की भावना होती है, जो ये उनके मन में होता है कि हमारे पास इतने सारे रोगों के वर्णन नहीं, पर वस्तु स्थिति कुछ अलग ही है। वस्तु स्थिति में अगर हम जाएंगे तो आयुर्वेद में दिए गए निदानों की संख्या इतनी मोटी मात्रा में है कि अगर आप वो लिस्टिंग करके बैठोगे तो उन सारे अवस्थाओं को, सारे रोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नामकरण होना भी मुश्किल है। नामकरण करने के बाद भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बच जाए। अगर ये होता है तो इससे आप आधुनिक चिकित्सक को ये पूछ सकते हो, या आधुनिक रिसर्चर को खास करके ये सामने रख के पूछ सकते हो कि आपकी इतनी सारी अवस्थाओं को हमारे आयुर्वेद में इतने सारे अवस्थाओं के साथ जोड़ने के बावजूद भी हमारी लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है। अब आप हमें बताओ कि हमारे इन अवस्थाओं को आप क्या कह सकते हैं। तब जाके आयुर्वेद की निदान पद्धति को लोगों के सामने रखने के बाद ये मुद्दा प्रकट होगा और बहुत स्ट्रांगली सामने जा सकता है कि आयुर्वेद की खुद की एक निदान पद्धति है। इस निदान पद्धति के पीछे शरीर को काटे बिना, शरीर को अंदर झाके बिना प्रत्यक्ष अनुमान, इन प्रमाणों के आधार पर निदान निश्चितीकरण के लिए किस तरीके से उपयोगिता में लाया जा सकता है, इसका वर्णन संहिताओं ने किया है। अब इस वर्णन को अगर हम देखते हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में हमारे सामने अध्ययन करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है, ये सामने आता है। और ये जब सामने आता है तो रिसर्च की एक डेफिनेट दिशा मिलती है, और उस दिशा में काम करने के बाद आयुर्वेदीय निदानों की लंबी चौड़ी लिस्ट आने के बाद कितने रोगों में कितने शरीर अवयवों की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उन इन्वॉल्वमेंट्स के दायरे में कितने सारे रोगों की अवस्थाओं का वर्णन इन वातज कर्मों में दिया है। ये सिर्फ मैंने वातज कर्म का उपयोग या उदाहरण दिया है। इस तरीके से पित्त के भी कर्म है, इस तरीके से कफ के भी कर्म है। इनके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो आयुर्वेदीय निदान पद्धति के बारे में रिसर्च करना हो तो निदान की लंबी चौड़ी लिस्ट निकल सकती है। ये मेरा मुद्दा है। उसी तरीके से आवरण के विचारों को भी देखना जरूरी है। उसके बाद आगे चलकर जब द्रव्य के हम रसवीर्य विपाक देखते हैं तो उसके पहले सामने रोग में दोष की प्रकोपता, दोष के लीन भाव, क्षीण भाव या मध्यम अवस्था होना, इनको हम जब देखते हैं, वृद्धि क्षय को देखते हैं, तो आगे चलकर दोष के वृद्धि क्षय, बाद में धातुओं की विकृतियां, मलों की विकृतियां, यहीं पर जाकर रुकना नहीं होता। नैदानिक रिसर्च करते समय इसके आगे चलकर कौन से विंशति गुणों से शारीरिक विकृतियों में इन्वॉल्वमेंट है, रोग की अवस्था में कौन से गुण की विकृति है, ये देखना भी एक रिसर्च का काम ही है। क्योंकि जितनी प्रिसीजन से हम रोग की अवस्था तक पहुंचेंगे, उसके निदान तक पहुंचेंगे, उतनी ही सरलता से सामने से चिकित्सा भी निश्चितीकरण होने के लिए फायदा होता है। तो वहां पर रुक्ष की रुक्षतम धारणा होने के बाद क्या क्या हो सकता है, इन वातज कर्मों के कौन सी अवस्थाओं में हृदय के तोद दिख सकता है या व्यास दिख सकता है, कि क्या हो सकता है, ये देखना बहुत सरल हो जाता है। जैसे व्यान की विकृति, और व्यान की विकृति में हृदय का व्यास बढ़ना, इसमें अवकाश की वृद्धि होना, इन सब का विचार करके नैदानिक स्तर पे इसके निश्चितीकरण की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मेरा मानना है। इस विषय में बोलना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के सामने संहिताओं के अध्ययन पद्धति को या अध्यापन पद्धति को किस तरीके से
होने की जरूरत है, ये विषय को सामने रखकर आज इतना ही बोलूंगा। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे अगर मौका मिले तो वी कैन डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो। फिर से एक बार आज एक मौका मुझे यहाँ पे बोलने के लिए और मतों को सामने रखने के लिए दिया गया, उसके लिए मैं शतशः आभार प्रस्तुत करता हूँ। किसी के कोई प्रश्न हो तो उनके जवाब देने की भी जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद। If anybody is having any type of question, they are free to ask. Sir has explained very well and in detail what to be done as Ayurvedic Nidanic research and direction of those methods. Actually focused on many topics of Rog Nidan research and what to be done ideally as an Ayurvedic researcher. I'm very much thankful to Sir for his deep thoughts and very much excellent. Someone is there in that. Yeah. And I'm very much thankful to Sir for his thought-provoking, very much impressive lecture. And I'm very much thankful to all students also. Sir, I request you kindly put your mail as well as contact number in the chat box so that those who are interested in further discussion, they can contact you. Okay. If anyone is having any question, you can ask. Dahilekar sir. Hello. Dahilekar sir. Are you there? Hello, madam. Yes. I would like you to hello. Hello. Sir. Yeah, madam, I am listening to you. Yes. So I request you, because you are such a senior person of Rog Nidan Academy, I would like to request you to kindly say a few words on this session. So this is the wonderful session. Sir, actually your voice is breaking. So am I audible, ma'am? Yes, now it's better. So this is the wonderful session explained by Satyavrat Nanal sir. They explain it very well, and whatever they are thought provoking with the scenario, with the clinical practices, they explain the research. How do you think about whenever you are going to treat a patient regarding Ayurveda methodology, then think it on the basis of Ayurveda diagnostic method first. Neither you will be just transforming it by the diagnostic methods of modern, and the picture and the scenario for the treatment and formulae same on the basis of modern. So you should be think in deep with respect to Ayurveda diagnostic method, Nidana Panchak, Shatkriya, and go for the its content, what we say Samprapti Ghataka. And when you understand exactly what is Samprapti and its components, then think on in the same way how you will break the Samvayi and Asamvayi Ghataka of the components of Samprapti and how to cure it, rather than to think or rather than to take a help from the modern side. And your thinking and your provoking of the things in better way on the basis of Ayurveda is so wonderful. It is given in literature. Sometimes you will be amazed why this formula given and how it works, but you apply it and you get a wonderful result, and you see that it is a Shashwat, the basic formula, but you don't believe in brightness of this modern technology
and this physical clinical examinations, diagnostic, and all the things. So thank you very much, sir. Behalf of this stage, you make aware that we should think basically and thoroughly through Ayurveda and treat it from Ayurveda. Uh, Thank you to Madam also. Uh, she gave me this opportunity to express my thought. Thank you once again. Hello.
हॅलो, माझा आवाज ऐकू येतोय? हॅलो. Yes, हो मॅम, now it is आता येतोय. audible. I don't know what happened from my side. Okay. Meantime, is anyone is yes. So Anand Paul sir, I think so many other yeah. Wait. नमस्कार. सर नमस्कार आवाज सर. येतोय माझा? हो, तुमचा आवाज येतोय. सॉरी सर, माझ्याकडनंच काहीतरी नेटवर्क, Yes. पाऊस पडतोय, नेटवर्क हाँ. माझ्याकडनंच काहीतरी असेल, आय डोंट नो. आई एम रियली सॉरी सर. बहुत अच्छा टॉपिक आहे. जी, सत्यव्रत नानल सर का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने जो बताया वो आजकल के विद्यार्थियों को इनसाइट डेवलप करने की जरूरत है. आज जो हम कंप्यूटराइज या जो भी जूम मीटिंग या जो भी करते हैं उससे आगे जाके पेशेंट में प्रत्यक्ष, और मैं तो बोलूंगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे हृदय व्यास बहुत अच्छी तरह से सर ने समझा है, तो हृदय व्यास शब्द हम क्यों इसको प्रचलन में नहीं ला सकते, सिर्फ हमारे तक आयुर्वेदीय निदान तक क्यों सीमित रखें. प्रचलन में जैसे आज प्राणायाम बताया या अनुलोम विलोम बताया, तो उसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रचलित हो चुके हैं शब्द. ऐसे आयुर्वेद के बहुत सारे मैं तो विद्यार्थियों को भी बताता हूँ कि जैसे सन्निकृष्ट निदान है, विप्रकृष्ट निदान है, निदान के जो टाइप्स है, तो स्टूडेंट को ऐसे बोलता हूँ कि ये इसको प्रचलन में लाओ, पेशेंट को देख के बताने का, ये ठीक है भाई, ये सन्निकृष्ट निदान है तो शमन औषधि देने से ठीक हो जाएगा आपका, ज्यादा नहीं है तो. या फिर ऐसा बोलो ये तो विप्रकृष्ट निदान है भाई, इसमें तो शोधन करना पड़ेगा आपको, तो बहुत ज्यादा पड़ेगा. ऐसे सीधे आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी हम क्यों प्रचलन में नहीं ला सकते, है ना. इसकी जरूरत है. जैसे ही ये टर्मिनोलॉजी पहले तो थे ही ये सभी शब्द प्रचलन में, आजकल हम उसको मॉडर्न में ट्रांसलेट करके बताते हैं या उसमें खुद को मतलब बड़ा समझते हैं, तो ये सभी प्रचलन में लाने की जरूरत है. और आपने सर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो ये एक इंसाइट है जो सभी ने डेवलप करनी चाहिए अपने आप में. धन्यवाद सर. थैंक यू सर. दीप्ति मैडम. हेलो दीप्ति मैडम. मैडम नमस्ते मैडम. हाँ नमस्कार मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट ये फेसबुक लाइव भी है, आप कुछ शब्द कहे अपनी तरफ से, जैसे कि आनंदपुर सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस सब सेशन पे, इस सब वक्तव्य पे. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर थॉट्स इन फ्यू वर्ड्स. ओके, थैंक यू मैम. एक्चुअली टॉपिक बहुत ही अच्छा था और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत यूजफुल है और इसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, खास करके जो आयुर्वेदिक रिसर्चर्स हैं और रोग निदान से रिलेटेड जो हमारे एमडी और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग था कि हमें रिसर्च का डायरेक्शन क्या होना चाहिए. हम लोग मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं या मॉडर्न डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, रादर देन दैट सर ने जो हमें बताया है कि हमें जो आयुर्वेदिक निदान से रिलेटेड जो हमारे सैद्धांतिक पक्ष है षडक्रिया काल के विषय में, जैसे सर ने बताया, थोड़ा सा इसमें ये है अभी प्रैक्टिकलिटी में लाने में, जैसे सर ने बोला हमें कि षडक्रिया काल लेना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि संचय, प्रकोप और प्रसर की जो तीनों अवस्थाएं हैं ये प्री क्लिनिकल है, तो पेशेंट हमारे पास इस अवस्था में नहीं आता है, तो ये तीन अवस्थाएं हमको डायग्नोस करने में या उनको देखने में थोड़ा मुश्किल जाता है. तो हम किस तरह से इन अवस्थाओं को कैसे हम डायग्नोस्टिक पॉइंट से या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम ये अवस्थाओं को कैसे कर सकते हैं, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्तावस्था के बाद तो हमारा इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाते हैं, हम एक्सरे करके देखते हैं, ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन हमें ऐसे टूल्स या ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करने चाहिए जो संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्थाओं को डायग्नोस कर सके. तो ये एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हमें इन तीन अवस्थाओं के लिए कुछ टूल्स डेवलप करने चाहिए, डायग्नोस्टिक मेथड्स डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये तीन अवस्थाएं यूजुअली पेशेंट आते नहीं है और हम इनको नहीं डायग्नोस कर पाते हैं. तो ये बहुत अच्छा एक सजेशन है सर का. और मेरा भी हमेशा से यही मानना रहा है कि हमें जो है अपने ही जो निदान के जो है जो परीक्षाएं हैं, त्रिविध है, अष्टविध है, दशविध परीक्षाएं, इनको डेवलप करना चाहिए, या इस तरह से षडक्रिया काल हो गया या क्षय वृद्धि के जो लक्षण बताए गए हैं
दोष धातु मलों के, तो उनके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं रादर देन हम बहुत ज्यादा मॉडर्न वालों की तरफ जाने से। तो एक नया सर ने जो आज हमें एक विजन दिया है कि किस विजन के, क्योंकि अभी जितना अनसेटिस्फेक्शन और जो हमारे निदान की जितने फैकल्टीज है उनमें है कि भी हमें आगे क्या करना चाहिए, नया क्या करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से आज का लेक्चर जो है वो थॉट प्रोवोकिंग है कि हमें इस दृष्टि में सोच करके इसमें कुछ नया करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। अभी अभी कुछ मिनट से मैं अपने फोन पे कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रिसीव कर रही हूँ, तो उन सबको पढ़ते हुए मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स और जो पूरे देश भर के, जैसे कि मैडम नॉर्थ साइड से कुछ जो लोग हैं और स्टूडेंट्स, यस कुछ स्टूडेंट्स है वो साउथ से भी है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आयुर्वेदिक जो निदान है उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या किया जाए। सो आयुर्वेदिक जो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या किया जाए। सर सत्यव्रत सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका इस विषय पे क्या कहना है। इस सवाल सुनने के बाद मुझे लगा शायद मैंने 40 मिनट में जो मुझे कहना था वो मैं बता नहीं पाया। अभी तक जो मैंने बोलने की कोशिश की है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के निदान के तरीके आयुर्वेद के क्या है वो मैंने सामने रखे। अब इनको आपको गणितीय तरीके से, गणितीय पद्धति से पेपर पे लाना है कि जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि व्यक्त स्वरूप में आने के बाद रोगी का हम एक्सरे देखते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं। तो अनीमिया, ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अनीमिया में एक रेंज बताई गई जिसमें हीमोग्लोबिन होगा तो वो नॉर्मल है। अब ये रेंज मतलब क्या है? रेंज मतलब 1000 लोगों को ले लिया जो स्वस्थ है, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये एक डेफिनेशन है स्वस्थ का कि कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे आयुर्वेद का मानना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, उन कुछ तकलीफ नहीं है ऐसे बोलने वाले लोगों के 1000 लोगों के ब्लड सैंपल लेने के बाद अगर एक रेंज मिलती है तो उस रेंज को अगर मैं स्वस्थ बोलता हूं तो वो स्वस्थ है कि नहीं, ये सबसे पहला मेरे सामने आने वाला सवाल है। क्योंकि आज तक के 20 साल के चिकित्सा के अनुभव में 3 हीमोग्लोबिन लेकर आने वाला 7 साल का बच्चा क्लिनिक में 3 घंटा उछल कूद करके माता पिता सर को हाथ धरे बैठे थे कि भाई इसको शांति से बैठने को नहीं आता। तो ऐसे तरीकों में बहुत सारी चीजें हैं जो एक रेंज में हमें दिखती है, लेकिन वो दिखना मतलब स्वस्थ है कि नहीं, इसको जांचने के कुछ तरीके होने चाहिए जो आयुर्वेद में है, ये मेरा मानना है और वही मैंने बोलने की कोशिश की है। तो आपको अगर पेपर पे लिखना है तो जैसे वात के कर्म है तो एक एक कर्म को लेकर व्यास ये कर्म हो गया, अब इस व्यास को हम कौन से शरीर के अवयव पर देख सकते हैं ये ढूंढना जरूरी है। स्रंस अगर हो गया तो स्रंस को हर एक शरीर के ऑर्गन में स्रंस मिल सकता है कि नहीं, इसको पहले ढूंढना जरूरी है। वो रिसर्च की सबसे बड़ी पहली चुनौती वैद्यों के सामने कि सिर्फ वात का कर्म है स्रंस, मतलब वो मस्तिष्क का स्रंस है या बुद्धि स्रंस है। संहिताओं में आप खोल के देखोगे तो वो बुद्धि स्रंस नाम से आपको कहीं ना कहीं व्याख्याएं मिलती है। तो कुछ वात की कर्म कुछ जगह पे अवयवों पे दिखेंगे, कुछ कर्म है वो शारीरिक तौर पे न दिख के शरीर क्रियाओं में दिखेंगे। इसको जानना, इसको बाइफरकेट करना, वर्गीकरण करना और उस हिसाब से निदान की कितनी पॉसिबिलिटीज है उनको सामने लिस्टिंग में लाना, ये सबसे पहली बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे रस वीर्य विपाक, इनमें 6 रस है। 6 रसों में कॉम्बिनेशन अगर देखने जाए, जैसे त्रिदोषों का कॉम्बिनेशन है 7 प्रकार के रोगों की अवस्था, वैसे रसों में 6 रसों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एकेरी एक रस, 2 रसों का एक कॉम्बिनेशन,
3 रसों का एक कॉम्बिनेशन, 4 रसों का एक कॉम्बिनेशन, 5 रसों का, और 6 के 6 रसों का षड रस। ऐसे करके आप अगर देखने जाओगे तो रसों की इतनी कॉम्बिनेशंस की अवस्थाएं मिलती है। फिर उसमें आप वीर्य जोड़ोगे, सिर्फ विविध वीर्यवाद से लोगे तो उष्ण और शीत गुण जाएगा, शीत वीर्य जाएगा, वो 2 उसमें ऐड होंगे। फिर आगे विपाक ऐड होगा, फिर आगे गुण ऐड होंगे, फिर कर्म ऐड होंगे। ऐसे अगर मैं एक्सेल शीट में डालकर देखता हूं तो मुझे कुछ लाख अवस्थाएं मेरे सामने एक्सेल शीट कंप्यूटर की देती है। अब एक वैद्य के तौर पे मुझे देखना है कि इतनी सारी जब मुझे फॉर्मूलेज मिल गए, अभी ये सारे फॉर्मूलेज पॉसिबल है कि नहीं। उसी तरीके से निदान में स्रंस लेकर या व्यास लेकर एक अवयव को अगर मैंने जोड़ना है तो शरीर का हर एक अवयव, जैसे नख का स्रंस होना, केश का स्रंस होना, यहां तक जाकर हमें देखना जरूरी है। सिर्फ ऑर्गन्स मतलब कोई बड़ा ऑर्गन है तो ही उसको देखना है, ऐसे मेरा कहीं भी मानना नहीं है। और यही निदान की पद्धति है, क्योंकि आगे चल के हम चिकित्सा में जब बोलते हैं कि आरोग्यवर्धिनी हम केश, नख से लेकर यकृत से लेकर हर चीज में इस्तेमाल कर सकते, तो उसका मतलब ही यही है। जब तक हम निदान को इस तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आरोग्यवर्धिनी केश में कहा, नेत्र में कहा, त्वचा में कहा, कैसे काम करेगी यही समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से निदान को भी इन्हीं स्तरों के हिसाब से विस्तृत तरीके से वर्गीकरणों में अलग अलग डालकर, तालिकाएं बनाकर, चार्ट्स बनाकर सामने रखकर उसमें से पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है के बाद आज तक कहाँ कितना क्या क्या देखा गया है, फिर वो पूरी दुनिया में जितनी भी अवस्थाएं नोट की गई है, उन नोट की गई हुई अवस्थाओं में से अपने लिस्ट में क्या क्या मिला है, और अपने लिस्ट में जो है वो बाहर कितने लोगों को क्या क्या मिला है, और अगर कुछ मिला है तो उसके ऊपर कुछ आगे चिकित्सा का दौर आया है कि नहीं आया। क्योंकि आयुर्वेद में तो हर चीज का निदान भी है और चिकित्सा भी है, ऐसे संहिता ही बोलती है। ये मेरा मानना नहीं है, चरक की प्रतिज्ञा है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्पचु। अगर ऐसे कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसका कोई एक मायना जरूर है। उन्हीं मायनों में निदान के ही स्तर पर अगर खुद को संक्षिप्त रखना है तो इन छोटी छोटी बातों में एक एक विषय को लेकर खोलकर सामने रखना, ये वैद्यों के रिसर्च के मायने हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। और एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोग, व्याधि एंड विकार प्रैक्टिकल? Yeah, Mr. Achyut Jagdale, I guess he has asked the question on the chat box. Yes, I know him. The most person, yeah. Yes, I know him. The question he has asked is, I would rather say, it's the most common dilemma in the entire Vaidya community always. कि रोग व्यक्त हुआ है कि रोग व्यक्त हुआ ही नहीं है। जैसे मैडम ने बोला कि रोग व्यक्त और भेद अवस्था में आने के बाद ही हमारे पास आते हैं, तो प्रसर और इन अवस्थाओं में रोग आते ही नहीं है रोगी, तो उनको निदान करने की कुछ पद्धति डेवलप करनी पड़ेगी। मेरे आज तक के 20 साल के अनुभव से सिर्फ उदान की विकृति इतना ही निदान करके चिकित्सा करने की एक प्रचलित पद्धति वैद्य नानल जो परंपरा चली आ रही है, उसमें 4 पीढ़ियों में हमने आज तक कुछ हजारों रुग्णों को तो यही निदान किया है कि उदान की विकृति है या व्यान की विकृति है, और उसी व्यान की विकृति को खोलकर सामने खुद के रखने के इन्हीं मायनों में, वृक्ष गुण की विकृति हो या किसी गुण की विकृति हो, को इसको ही ढूंढ कर काम करने के बाद प्रसर, प्रकोप, इन सारी अवस्थाओं को षट क्रिया काल के देखा जा सकता है। जो रुग्ण चिकित्सा के लिए ओपीडी में आते हैं उनमें ही देखा जा सकता है, ये मेरा स्टेटमेंट। सर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब सीधा सीधा है कि हाँ, रोग विभिन्न है, अवस्थाएं उनकी विभिन्न है, सारी एक एक टर्म जो सर ने बोली वो एक एक चीज विभिन्न जरूर है, लेकिन एक ही शरीर में 2 रोग हो सकते हैं कि नहीं,
इसका उत्तर ना नहीं है, इसका उत्तर हाँ है। तो एक ही शरीर में दो अलग अलग रोग हो सकते हैं। एक ही शरीर में एक ही रोग की वजह से दूसरा रोग उत्पन्न होना, वो उपद्रव स्वरूप या उदर स्वरूप है, ये भी शक्य है। और एक ही समय में एक ही शरीर में दो अलग अलग रोगों की संप्राप्ति मिलना, ये भी संभव है। ये मेरा मुद्दा था। तो सर ने जो सवाल पूछा उसका जवाब है हाँ, रोग अवस्थाएं अलग अलग होती है। Yes. Anyone wants to ask any question? Yes. I think जिस उद्देश्य से ये लेक्चर रखा हुआ था, मुझे लग रहा है ये डिस्कशन के बाद we have achieved our goal, and now sir has given us one direction to think about how we should proceed for the Ayurvedic Rog Nidan research. Thank you very much once again from all of us, and thank you very much to all those senior most Ayurveda researcher celebrities who are there still in the participant list. They are attending this lecture, and I'm very much thankful to all of them. They took very precious time of them to be present for this lecture. So thanks one and all. And with this sentence, I am going to end this meeting. Thank you so much.